اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اس جنگ میں حصہ لیا۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑے، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تعریفی معاہدہ کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث اور فضل بن عدائدہ اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔
नस्तूरन मुयस्सरा को बहुत पहले से जानता पहचानता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही मस्तूरन मुयस्सरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ए मुयस्सरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे बैठे हैं? मुयस्सरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लक़ब आमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के उस दरख्त के नीचे आज तक कभी कोई नहीं बैठा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिरुज़्ज़मा यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरात व इंजील में पढ़ी हैं, वो सब मैं उनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो मैं उनकी भरपूर मदद करता और पूरी जान निसारी के साथ उनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ए मुयस्सरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि खबरदार, एक लम्हा के लिए भी तुम उनसे जुदा ना होना और इंतहाई खलूस व अकीदत के साथ उनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको खातमुन नबीयीन होने का शर्फ अता फरमाया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल फरोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत अम्मा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बाला खाने पर बैठी हुई काफिला की आमद का मंजर देख रही थीं। जब उनकी नजर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नजर आया कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर धूप से साया किए हुए हैं। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कल्ब पर इस नूरानी मंजर का एक खास असर हुआ और वो फर्त अकीदत से इंतहाई वालहाना मोहब्बत के साथ ये खूबसूरत जलवा देखती रही। फिर अपने गुलाम मुयस्सरा से उन्होंने कई दिन के बाद उसका जिक्र किया तो मुयस्सरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंजर देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीबो गरीब बातों का मुशाहिदा किया है। फिर मुयस्सरा ने नस्तूरन राहिब की गुफ्तगू और इसकी अकीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आपसे बेपनाह क़ल्बी ताल्लुक़ और बेहद अकीदत व मोहब्बत हो गई और यहाँ तक उनका दिल झुक गया कि उन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह की रग़बत हो गई। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मालो दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त माब खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा पाकबाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और इनसे दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। उनसे भी दो औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्लाह बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे शौहर अकीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ अक़्दे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैरत अंगेज हालात को सुनकर यहाँ तक कि उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके कल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। कहाँ तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थीं और ये तय कर चुकी थीं कि अब 40 बरस की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूँगी। और कहाँ खुद ही हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफ़िया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जो उनके भाई अवाम बिन ख़ुवैलद की बीवी थी। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के ज़रिया खुद ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि उस रिश्ता को पसंद करने की जो वजह हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो खुद उनके अल्फाज में ये है, मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ता को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाक दामन शरीफ अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता।
सारे खानदान वालों ने निहायत खुशी के साथ इस रिश्ता को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू तालिब वगैरह अपने चचाओं और ख़ानदान के दूसरे अफराद और शुरफा बनी हाशिम और सरदारान मुज़र को अपनी बारात में लेकर हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त अबू तालिब ने निहायत ही फसीह व बलीग खुतबा पढ़ा। इस खुतबा से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले आपके ख़ानदानी बड़े बूढ़ों का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कैसा ख्याल था और आपके इखलाक व आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के इस खुतबा का तर्जुमा ये है, तमाम तारीफ़ें इस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको मैद और मुज़र के ख़ानदान में पैदा फरमाया और अपने घर काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतजिम बनाया और हमको इल्म व हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई का फर्जंद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस शख्स का भी उसके साथ मुवाजना किया जाए ये उससे हर शान में बढ़ा हुआ ही रहेगा। हाँ, माल उसके पास कम है, लेकिन माल तो एक ढलती हुई छाओं और अदल बदल होने वाली चीज है। अम्मा बाद, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम वो शख्स है जिसके साथ मेरी कराबत और कुर्बत और मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वो खतीजा बिनते खुवैलद रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊंट महर मुकर्रर करता है और इसका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक, अजीमुशान और जलीलुल कद्र है। जब अबू तालिब अपना ये वलवला अंगेज खुतबा ख़त्म कर चुके तो हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा जिसका मजमून ये है, खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि ए अबू तालिब आपने जिक्र किया और हमें वो तमाम फजीलतें अता फरमाई हैं जिनको आपने शुमार किया। बिलाशुबा हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं और आप लोग भी तमाम फजाइल के अहल हैं। कोई कबीला आप लोगों के फजाइल का इनकार नहीं कर सकता और कोई शख्स आप लोगों के फ़ख्र व शरफ को रद्द नहीं कर सकता और बेशक हम लोगों ने निहायत ही रग़बत के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ता में शामिल होने को पसंद किया। लिहाजा ए कुरैश, तुम गवाह रहो कि खदीजा बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजियत में दिया 400 मिस्काल मेहर के बदले। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो गया और हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का खाना मईशत इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ आबाद हो गया। हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रही और उनकी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के एक फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही के बतन से पैदा हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की गमगुसारी और खिदमत में निसार कर दी।